Started, na? Okay. Okay. Now the thing is, शबाद बोल रहा था कि कुछ issues है तुम लोग. अच्छा, now my first question, जो I asked the same question to शबाद also. मैंने जानबूझ के डेटा सेट नहीं दिया था. I have my reasons कि मैंने क्यों नहीं दिया था. Okay. तुम लोग क्यों नहीं थे? We thought of asking, but then we thought maybe like we'll have that evaluation first and then maybe we'll be sharing. So that's why. But yeah, we discussed that we'll ask you, and we thought of having a like session with you, the doubts and all. But then कोई बात नहीं. we did not अच्छा. ask. Okay. Now tell me what are the doubts first. अच्छा, पहले क्लास कर ले फिर डाउट करे या फिर पहले Yeah, डाउट yeah. First, करे? No, you people tell me. No issue. I don't have any issue. Tell me क्या करना है? First, we'll clear the doubts. ठीक है. okay. So I have a question like when we are just checking for any profit or sales or anything, right, for any chart. So is there any option that we can add the parameter for profit or a particular any parameter or any sales? Suppose let's say I would have given you an example. Parameters in that sense. Suppose like you want to get the top 5 cells, right? Correct. Yeah, top 10 cells, and along with that you have created a parameter also. What we have I have shown you last session, na? Apart from that, in parameters you can also do something else. Suppose you create a parameter and you create a calculated field also. Let's say you have a sum of cells, okay, for each individual subcategory. Okay. And you want to see in a table format, just after the sales value, you want to see what will be your sales value if you earn, what will be your, let's say you have the profit based on your subcategory in a table format, okay, and you want to see if your profit is increased by 20%, then what will be that value for those individual subcategories. You can create a parameter and then you can do that for 20%, 40%. Let's say you are assuming that okay, next year maybe yeah, in the coming times my profit, if I earn a profit of let's say 20% of what I am having today, then what will be the value for each individual subcategory. So those kind of things you can do. Now, tell me. Okay, I got it. You mentioned that, but like, can we just share a screen and just Tell me now. once? Let's Okay, see. like you just tell me how to like what exactly you meant. Okay, shall I share my screen? Sure. Let me know once you can see. Okay, so for example, okay, we'll take subcategory. Okay, and we'll take profit. But oh, right. So how like where can we add this parameter or like I did not No, first do something. Last day, have you understand that creating a set and parameter and how to link both of that? Yes. So that you can do, right? Yeah. But Tell me.
Okay, like what I meant is like for a normal chart, for a just normal chart, is there any option to make any parameter or no? Or do we have to just connect it and then do like that? Hey, you have to create a set first. You have to create a set first, and then you have to connect to that parameter. Then you first create a parameter, na? Go to calculated that option, top. Yes, right, 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 right. Drop down, 1 second, huh? drop down. Create a parameter first. Hmm. Create a parameter. What kind of parameter you want For profit. for profit? Let's say if profit is increased by 20%. Let's say that. Uh, Okay. hmm. What will be the data type? The data type should be Digit, digit, right? hmm. Okay. At that point of time, what we have done last class, we have given a range, right? Hmm. A minimum and a maximum. Hmm. Okay. Do you need a range here? No, You don't need a range here, right? no. So you can give a what you can give. Allowable values should be all. The display format is okay. That you can shift, na? That is okay. Hmm. Let this be current value. You can keep it as all. Hmm. Okay. Integer profit is increased by 20%. Okay. Now, how you want to do it? First, you need to अगर suppose देखो अगर 20% increase हुआ है sales, तुम्हारे पास तो वो डेटा नहीं है. अगर जब होगा 20% increase होगा, Correct. तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पहले? तो you have created a parameter. Good enough. What else do you need to create? Tell me that first. Set. No, not just set. First, you need to create a calculated field. A calculated field which will calculate your 20% increase in profit. Right? Correct, correct. और एल्स तो वो वैल्यू ही तुमको नहीं मिलेगा कहीं से. पैरामीटर, अच्छा एक बात बोलो, पैरामीटर क्या करता है? व्हाट इज इट्स यूज? ये बताओ पहले मुझे. पहले जो लास्ट डे हम लोग सीखे थे उसमें से यू टेल मी कि पैरामीटर का काम क्या है, बताओ. मतलब हाउ इट हेल्प्स अस, टेल मी दैट ना. नॉर्मली Like to define any particular kind of like जो भी dynamic value होता है, we can just for visualization it will एग्जैक्टली. help us to हाँ, हाउ हाँ, लेट्स से इफ वी आर हैविंग, कस्टमर ने बोला है कि मुझे टॉप 15 मतलब 15 टॉप सब कैटेगरी का वो जो सेल्स होता है वो मुझे देखना है. ठीक है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है. सो यू वेंट टू फिल्टर, यू हाँ. वेंट टू दैट टॉप वाला थिंग एंड यू मेड इट 15 देयर. ओके, and through filter you have got that result in the sheet. Now tomorrow he comes up and says कि नहीं मुझे 15 नहीं देखना है, टॉप 20 देखना है. ठीक है. So what will you do? You will again go back to that filter option, you will edit that, and then you will put 20 there. It's a long process, right? When you add a parameter to it and you show that parameter on the right hand side, what happens is Here I can just use he it, can just drag it and use it. 20. Yeah, that's how it helps you as a parameter. Okay. It has nothing else to do here. Parameter इससे ज्यादा उसका as such कोई काम नहीं है. And trust me, in Tableau, you know, in real life scenario, you will not be using parameters in so many places. नहीं होता है, बहुत लोग नहीं यूज करते ये सब उतना एडवांस. आज जो मैं एनालिटिक्स वाला फील्ड भी तुमको दिखाऊंगा, इन Tableau people don't really use all of this, सिवाय कुछ चीजें छोड़ के नहीं यूज करता है. तो मेरा ये बोलना है कि लास्ट डे जो हम लोग किए वो मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया.
लेट्स से मैं एक नॉर्मल सब कैटेगरी के हिसाब से अगर पैरामीटर चूज करना चाहता हूँ, नाउ उससे हेल्प क्या होगा तुम्हारा, मुझे ये बताओ. यू वांट टू सी अ पैरामीटर फॉर व्हाट, अ डिमेंशन और अ मेजर, वो बताओ मुझे. both. Dimensions. फॉर डिमेंशंस. अब सोचो यू हैव 15 सब कैटेगरीज, ओके, Hmm. एंड यू आर क्रिएटिंग अ पैरामीटर. फायदा वही तो मैं समझना चाहता हूँ कि आई आई हैव अंडरस्टैंड, मतलब मैं, तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि हम्म। मुझे इसके ऊपर एक पैरामीटर यूज करना है, वेरी गुड. फायदा क्या है, करके क्या कर, मतलब क्या हेल्प होगा, वो तो फिल्टर से होगा, पैरामीटर यूज करके क्यों होगा. यू वांट टू सी कि कौन सा 15 सब कैटेगरी है तुम्हारा राइट हैंड साइड में, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी, ओके आई, मतलब तुम्हारे हिसाब से लेट्स से आई वांट टू सी दी 5. So you click all those, select all those 5 and you can see it based on the filter. पैरामीटर यूज करके क्या होगा, पैरामीटर कब आता है. So basically for parameters, like whatever filter we use, or if we create any calculative fields or whatever, like for that, एग्जैक्टली, कोई सेट it's a क्रिएट किए हो. scenario wise analysis एक- parameter. It's just a scenario analysis. एग्जैक्टली, कोई अलग से नहीं है. मतलब अगर तुम हम्म. इसके ऊपर कुछ करना चाहते हो, हम्म. सी पैरामीटर मेजरली यूज होता है फॉर न्यूमेरिकल थिंग्स. Hmm. लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन, बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ना, टॉप 15 टॉप 20 वैल्यूज के ऊपर पैरामीटर लगाए थे. Okay. आज अगर प्रॉफिट के ऊपर भी 20% प्रॉफिट बढ़ने से जो होगा, वो भी मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, एक मेजर के ऊपर ही लगा रहा हूँ ना. आई एम डूइंग इन ऑन द बेस्ड ऑन अ मेजर, राइट. तो Correct. डिमेंशंस के ऊपर पैरामीटर्स नहीं लगता है नॉर्मली. Okay. तो बोलो, मैं तुमको और एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले डाउट्स बता दो और क्या है, बोलो. Lollipop chart भी था ना पायल? हाँ, lollipop chart था, and that how to mark that highest sales and profit in any chart. उसमें थोड़ा confusion था. मार्क एज इन, मतलब just to highlight or something, highest sales or profit uh, for any chart or anything like. अच्छा, लाइक एक चार्ट में अगर कोई हाईएस्ट सेल्स है तो उसको तुमको हाईलाइट करना है. हाँ, not this वाला highlight, okay, not this kind of नो thing. नो 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 नो, समझ गया. हाँ, like this is just the highlighted fields, right? यस. But I want to make that just highest profit and highest sales, वैसे करके. मतलब for example यहाँ पे we can just see this, we can understand, right? This is bigger, so that means हाँ. this is more profit. यस. इसमें थोड़ा कम, इसमें उसके बाद, and then this, like that, हाँ. right? हाँ. But for another chart, like for हाँ. example, for any chart, Bar graph. कहाँ गया वो? For any kind of any horizontal bars or normal bars, anything, like how to just highlight only that highest profit and highest sales, मतलब, using filters, or how was it? नहीं, Like if फिल्टर. like if you just tell me, I can even start it from the beginning, like. हाँ, तो मैं, द बेस्ट थिंग इज कि जो हाईएस्ट है, Hmm. विजुअल, देखो, if we are visualizing something, right, Hmm. it is based on certain criteria, right. Hmm. So why do we have that option of sorting. अगर तुम सपोज कोई भी एक चार्ट लो, एक बार चार्ट लो, कोई भी है, नॉर्मल बार चार्ट, नॉट स्टैक्ड वन. एक एक नया शीट खोलो ना, कोई भी एक नया शीट खोलो, न्यू वन, क्रिएट अ न्यू वन. हाँ, टेक सब कैटेगरी एंड टेक सेल्स, टेक सेल्स. Hmm. नहीं, मेक अ बार चार्ट. हो गया ना, Hmm. ओके. नाउ मेक इट, सॉर्ट इट
from descending to ascending. Now you want to see कि ये phones का हम्म इसको तुमको highlight करना है, right? हम्म And now the question is क्यों highlight करना है? जब डिसेंडिंग ऑर्डर करने से मुझे दिख रहा है कि यही हाईएस्ट है, क्यों करना है? बट उस इसमें तो ये ऑप्शन मतलब सब कैटेगरी बस इतना सारा ये राइट व्हाट इफ हाँ। देयर आर 1000 सब कैटेगरी 1000 सब कैटेगरीज, राइट? हम्म तुम जो भी कर लो, तुमको अगर हाईएस्ट ही दिखाना है, नाउ लेट्स से यस, यहाँ पे बहुत सारा चीज का आता है। लेट्स से यू हैव 50 सब कैटेगरीज, ओके, हम्म और तुमको सब नहीं दिखाना है, तुमको लेट्स से वैल्यूज फ्रॉम 100,000 टू 300,000 के बीच का जो है वो सिर्फ दिखाना है, तब क्या करोगे? तब तो देन आई ऐड अ फिल्टर क्या फिल्टर करोगे? वही वैल्यूज यू गिव दैट रेंज राइट आई हाँ, सेट बस उतने से ही, मतलब फ्रॉम दिस टू दैट दैट्स इट दिस टू दैट। हाँ नाउ अब तुम अपना क्वेश्चन ठीक से समझाओ मुझे। हम्म तुमको क्या देखना है? जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है, राइट? No, not just the नॉट highest. जस्ट अगर ये पर्टिकुलर सब कैटेगरी में पॉइंट आउट करना है तो कैसे पॉइंट आउट करें? सब कैटेगरी के पॉइंट आउट, आई डिडंट गेट यू, एक बार रिपीट करो ना। Any, if we are to highlight one single bar. लाइक सपोज मुझे ये इफ क्लाइंट इज आस्किंग मी शो मी द स्टोरेज वन ठीक है हाँ, तो सी आई कैन नॉट कलर इट राइट इन अ हाँ, डिफरेंट कलर मैं ये पूरा डिफरेंट कलर करूंगी तो ये सब चेंज हो जाएगा वही सेम कलर में हाँ। तो मतलब we right out of all this out of 1000 subcategories how do I highlight only one particular thing if someone is asking me just show me that one ग्रुपिंग किए थे ना लास्ट डे, तुमको सिर्फ मशीन देखना है, राइट? लेट्स से हम्म तो मशीन पे क्लिक करो, उसको ग्रुप करो। बट हम लोग ऐसे ग्रुपिंग नहीं किए थे राइट हम लोग बहुत ऑब्वियसली एक एक से ग्रुपिंग नहीं होता है, राइट? बट अगर तुम ऐसे कर दोगे और अपने हिसाब से कलर चेंज करो, अगर जो भी चाहिए तुमको, मशीन्स के लिए अलग से कलर तुमको मिल जाएगा। how to do that how can I तो अभी तो किए, तुम कलर पे जाओ, एडिट कलर्स पे जाओ, यही सब है तुम्हारे पास। okay तुमको that's हाईलाइट, it हाँ, तुमको तो हाईलाइट करना है ना बस। okay so for that particular thing I have to group it without Yes. grouping it I cannot नहीं कर पाओगे ना, सिंगल वे में कैसे हाईलाइट करोगे? यू हैव टू ग्रुप दैट। I'm वंस यू grouping it to what like नथिंग, तुमको बस हाईलाइट, सी नॉर्मली ग्रुपिंग कब होता है? जब 3-4 एक साथ तुम हाँ कंबाइन करते हो, correct राइट? हम्म तब ग्रुपिंग होता है। बट हियर यू वांट टू जस्ट शो किया सिंगल, उसको हाईलाइट कर रहे हो, राइट? हम्म वो एज सच ऑप्शन वैसे नहीं होता है, okay कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, ऐसे वैसे हाईलाइट नहीं होता है। तो तुम इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो okay एंड कलर इट। शबाद चला गया क्या? yeah एक बार okay पूछो कहाँ है। and one more thing হুম, ঠিক আছে সৈকত আমি না এখান থেকে এই অপশনটা পাচ্ছি না এই পিডিএফ এ তুমি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ কি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। এই প্রিন্ট টু পিডিএফ অপশনটা আমার নেই তো আমি তার মানে পিডিএফ এ ডাউনলোডই করতে পারবো না আমার কোনো ড্যাশবোর্ড পারবে, কেন পারবে না? প্রিন্টে যাও, হ্যাঁ প্রিন্টে গেলে দেখাচ্ছে নো প্রিন্টার ইনস্টল একটা প্রিন্টার এন্ড ট্রাই প্রিন্টিং এগেইন। তোমার কাছে এই অপশনটা আসে না, যেটা ওই সেভ অ্যাজ পিডিএফ বলে? না ওই অপশনটায় দেখো আমি ক্লিক করলে ওইটাই আসছেই না বাট বাকি সব করতে পারছি আমি বাকি সব ভাবেই সেভ করা যাচ্ছে বাট পিডিএফ আমি করতে পারছি না দেখছি, মানে আমি এখানে গিয়ে পেস্ট করে করে সব করতে পারছি হুম হুম। কিন্তু আমি পিডিএফটা পাচ্ছি না
সেই অপশন দেখছি, পিপিটি আছে, সবই আছে, কিন্তু জানি। PDF টা নেই কেন? এক সেকেন্ড একটু হোল্ড করবে? হ্যাঁ, हाँ पायल, एक बार देखो ना शवाद का है। হ্যাঁ, I messaged her. हम्म। It's not delivering. नेट चला गया था। हाँ शायद। Wait, I'll just call her. एक बार देख लो ना। हेलो, नेट चला गया क्या? ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। ओके। She lost her electricity. She said that I'll try to join in another 10 minutes or something. अब कैसे करूँ बोलो, कोई रहता ही नहीं है, कैसे करूँ? না না, আমি আছি, আমি প্র্যাকটিস করছি। আমার এইম হচ্ছে এই মান্থের মধ্যে সব শেষ করে দেওয়া যতগুলো ক্লাস না না, রয়েছে। সেটা হয়ে যাবে, সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই। আম, আচ্ছা একবার ওইটাই যাও তো, সাম যে বারটা এখন ক্রিয়েট করেছিলে একবার যাও। হ্যাঁ, কোথায় গেল? এটাই। হ্যাঁ, না না, এটাই না, হ্যাঁ এটাই রাখো, ঠিক আছে। এটাই। হুম এবার একটা কাজ করো তো, সাম অফ প্রফিটে যাও, ড্রপ ডাউনে ওপরে কলামসে। হুম এখানে তুমি মেজার্সে যাও, নিচে আসো। হুম হ্যাঁ, এখানে ম্যাক্সিমামটা করো, ও সরি। ম্যাক্সিমামটা করো। ওকে। নো ইট উইল নট হেল্প। হুম, yeah, it's kind of same. इट्स काइंड ऑफ सेम, तुम एक कलर में जाके यू कैन डू अ डाइवर्जिंग पैलेट, बट वही सेम चीज है, कलर अलग आएगा और कुछ कुछ, हाँ, दैट्स हाउ इट विल बी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, और एनीथिंग एल्स बताओ, और क्या है? वो कुछ बोल रहा था, शबाद कुछ बोल रहा था हम्म। कि तुम लोग ऐड नहीं कर पा रहे हो डैशबोर्ड पे चीजें। Yeah, where didn't it go? See, Shaba, will you be able to share your screen? Actually, electricity has been cut off, so I joined it from my phone. Okay, so can you see my screen? आई कैन। So I can add it, okay, like from this sheet. But when she's trying now, she's not getting this many sheets. See, if you see that I can get all the sheets, right? But she's not getting this. I am getting only 4 sheets, Hmm. starting 4. But she's seeing these sheets in storyline, but not on this dashboard. नहीं, जितना भी शीट क्रिएट करते हो, अगर जब डैशबोर्ड क्रिएट करने जाओगे उतना शीट तो दिखाएगा ही। नहीं दिखा रहे उसको क्या, तुमको नहीं She's दिखा रहे? no, she's not able to see. यही तो, अगर तुम लिसन, मैं बता रहा हूँ, अगर अभी तुम्हारा पावर आ जाता है तो गुड एनफ, अभी मुझे दिखा दो। अगर नहीं होता है, सपोज इस क्लास के अंदर तुम्हारा पावर नहीं आता है घर का, जब आए ना
गिव मी अ कॉल, मैं गूगल मीट में एक अलग ये करके मैं तुमको हेल्प कर दूंगा. Okay, okay, no Don't problem. wait for the next class. I'll help you out. सीखना अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट है. तो डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास की संडे आएंगे फिर देखेंगे. ये जो जब तुम लोगों को इशू हो रहा था वीक पे, राइट, Yes, तभी क्यों नहीं बोला? तभी हम we लोग बैठ जाते 10 मिनट के लिए. प्रॉब्लम्स रहेंगे तो एक साथ में फिर कनेक्ट करेंगे. क्योंकि तभी होता है ना जब मतलब तुम कर रहे हो चीजें, तब अगर तुमको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ना तो इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल्सो टू रिमेम्बर दैट. ठीक है, बाद में जब आए तो बैठ जाना. पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मली तो सारा आ जाता है शीट. पता नहीं क्यों ऐसा है. ठीक है, आई विल सी टू इट. और नेक्स्ट क्या है बताओ? I guess lollipop chat, right? हाँ, लॉलीपॉप चार्ट. इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं करवा दूं. वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है. ओके. रियल लाइफ में कभी यूज भी नहीं करोगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ, ये पूछना था हम लोग को कि हाँ. सिंस देयर आर सो मेनी चार्ट्स, राइट, वी आर हाँ. प्रैक्टिसिंग दैट, बट डेली बेसिस पे या मेनली ऐसा कुछ, मतलब विच आर द इम्पोर्टेंट चार्ट्स जो कि हर एक प्रोजेक्ट में रहता है. यस, और यस, अभी वही एक एक एक्सप्लेनेशन देंगे ना. आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. यू आर इनटू लाइक कंपनीज में बहुत सालों से हो एंड ऑल. सो एक चीज बताओ मुझे, व्हेन वी यूज अ लाइन चार्ट, हम लोग लाइन चार्ट कब यूज करते हैं? क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? जस्ट अ ग्राफ, नॉर्मल. नहीं नहीं, नॉर्मल. कौन सा मतलब कौन सा डिमेंशंस एंड मेजर हमारे पास रहने पर कि वी यूज अ लाइन चार्ट? Profit and sales. प्रॉफिट एंड सेल्स रिगार्डिंग व्हाट? बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डेटा, लाइक. नॉट डेटा. बता रहा हूँ. Date. लाइन चार्ट तभी यूज होता है जब तुम एक टाइम पीरियड में, जब तुम उसका अप डाउन दिखाना चाहते हो, that's when you use a line chart. Let's say I want to see the sales or the profit over a time frame. Anything related to date, okay? जब साल, क्वार्टर्स या हाफ ईयरली, जब ऐसा बात आता है रिगार्डिंग सेल्स, प्रॉफिट एंड एनीथिंग, तब क्या यूज करोगे? लाइन चार्ट. बिकॉज सीईओ लेवल जो भी होता है, दे प्रेफर कि वो लाइन चार्ट से समझना है उनको कि मेरा ईयर वाइज मेरा ग्रोथ कैसे हुआ. व्हाट इज लाइन चार्ट कब यूज करना है? एनीथिंग अ डेट एंड अ मेजर. ठीक है, ऑलवेज अ लाइन चार्ट. अब बोलो बार चार्ट कब यूज करते हैं नॉर्मली? बताओ. Highest number of sales or highest number of profit. बार चार्ट तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव अ एक व्हेन वी हैव अ डिमेंशन टू इट. जब हम लोग एक एग्रीगेशन के ऊपर एक डिमेंशंस ऐड करते हैं, then it's better to use a bar chart. Like I want to see सब कैटेगरी का सेल्स. पहले मैंने क्या बोला? लाइन चार्ट कब यूज करते हैं? वहां पे कोई डिमेंशंस नहीं है, वहां पे डेट डिमेंशंस है. डेट डिमेंशंस के साथ अगर सेल्स एंड प्रॉफिट मेरे को दिखाना है तो आई विल यूज अ लाइन चार्ट. But when I want to see subcategory, category, region wise, yeah, anything of that sort, then I will use a bar chart. Can be a horizontal one, can be a vertical one. अब मुझे ये सिंगल के लिए है. सपोज आई वांट टू सी वर्टिकल बार चार्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ, या हॉरिजॉन्टल बार चार्ट फॉर अ सिंगल मेजर, एक यूज किया. जब मेरे पास दो मेजर है तब क्या करना है? बार चार्ट. बार चार्ट. बट हाउ टू यूज दैट? अगर डबल है, मेरे पास दो मेजर्स है,
प्रॉफिट भी है, सेल्स भी है, क्या करते हैं हम लोग तब बताओ? उसको मर्ज करके वो एग्जैक्ट डुअल एक्सिस, एग्जैक्टली, जो आप डुअल एक्सिस करते हैं। डुअल एक्सिस करता था। यस, सो थॉट प्रोसेस ऐसे लाओ कि अगर डेट डिमेंशन के साथ कोई मेजर्स है, लाइन चार्ट। अगर डिमेंशंस के साथ कोई मेजर्स है, एक मेजर, दो मेजर, बार चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट कब यूज होता है? पाई चार्ट और डोनट चार्ट तो अलग तरीके से क्रिएट करता है, जो मैंने सिखाया है, बट नॉर्मली पाई चार्ट कैसे कब यूज करोगे? एग्जाम्पल दो, ये डेटा सेट से ही एग्जाम्पल दो। ऐसा कौन सा डिमेंशंस और मेजर में मतलब यूज करूंगा फॉर अ पाई चार्ट, जो एक कंपनी के सीईओ या हायर मैनेजमेंट देख के बोलेगा हाँ ये पाई चार्ट से मुझे ये समझ आ रहा है। सब बताओ। कैटेगरी एंड सेल्स और सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट। नो, सब कैटेगरी सेल्स एंड प्रॉफिट तो मैंने बार चार्ट कर दिया, ये बार मतलब के लिए बेस्ट है फॉर ऐसा। हाँ बोलो। जो सेगमेंट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट वाइज, यस, हाउ मच। रीजियन हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी योर कौन सा मार्केट है। तो पाई चार्ट दिखा के तुम दिखा सकते हो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ टोटल, कि कौन सा मार्केट मेरा मैक्सिमम परसेंटेज कैप्चर कर रहा है, राइट? I have a doubt. हाँ, टेल मी। If you are creating, as you told, dual chart create कर सकते हैं dual axis पर दोनों को sync कैसे करना है? पहले you have a sum of sales and you have a sum of profit as a measure, ठीक है? देन जो तुम्हारा सेकेंड वाला लिए हो, लेट्स से प्रॉफिट लिए हो, सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे जाके ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो वहां पे है मेक डुअल एक्सिस। व्हेन यू विल मेक अ डुअल एक्सिस, देन जो पेज पे आएगा तुम्हारा डेटा पे, जो कैनवस पे आएगा, उसमें से कोई भी एक एक्सिस लेके राइट क्लिक करके यू नीड टू डू। अच्छा पायल शेयर करो, मैं समझा देता हूँ। We can make cross tab also, like it sometimes if the value is less or just sales and profit रहता है तो cross tab से भी तो वो same value like we can क्रॉस टैब से तुम वैल्यू भी देख सकते हो एंड द चार्ट्स भी देख सकते हो। हाँ। इट हेल्प्स लाइक दैट। एक नॉर्मल एक शीट क्रिएट करो ना फटाक से। ओके, लेट्स टेक सब कैटेगरी, टेक सेल्स। अब इसको बार चार्ट कर दो। अब प्रॉफिट भी ले जाओ ऊपर, इसको ना उल्टा कर दो पहले। नो नो लेफ्ट, नहीं नो, गो लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ, नो नो नो, दैट वन टर्न कर दो, लाइक इंस्टेड ऑफ दिस मेक अ वर्टिकल वन। हाँ, दिस वन, यस। okay. ओके, अब आउट नाउ टेक प्रॉफिट देयर। यस, तो क्रिएट हो गया। ओके, शाबाश, देख लो कैसे करते हैं। आप प्रॉफिट पे जाओ, ड्रॉप डाउन, डुअल एक्सिस आ गया ऐसा, ठीक है? अब तुमको क्या करना है, अब डुअल एक्सिस चार्ट बना रहे हो, ठीक है? देयर आर ऑप्शंस, राइट हैंड साइड पे शो मी पे देखो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर वाला नहीं, नीचे 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 नीचे, बार चार्ट जैसे डुअल एक्सिस देखो, काइंड ऑफ, नहीं नहीं, नॉट दिस वन, टॉप टॉप टॉप, इसके ऊपर वाला, राइट हैंड साइड, नीचे आओ, और साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, जस्ट बार चार्ट के पास वाला, मिडिल वन, यस, Okay, stacked bars. स्टैक्ड बार, ऐसे आएगा, बट यू डोंट नीड दिस वे, राइट? अब तुमको चेंज करना है, लेट्स से नाउ यू गो बैक टू हाउ इट वाज एज अ नॉर्मल बार चार्ट पे जाओ, ठीक है? अब तुम क्या कर सकते हो, सम ऑफ प्रॉफिट, अच्छा पहले तुम फिर से वो कर दो, पहले चेंज कर दो, ये रिवर्स कर दो उसको, क्योंकि फिर से साइड बाय साइड आया। हाँ, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप ठीक है, आप सम ऑफ सेल्स के ऊपर ही करो, कोई बात नहीं, डुअल एक्सिस, हाँ, मेक इट अ डुअल एक्सिस। जैसे ही तुम डुअल एक्सिस किए ऐसे आ गए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू,
एक एक्सिस पे जाओ, कोई भी राइट हैंड साइड के एक्सिस पे जाओ, एक्सिस सेल्स, हाँ एक्सिस पे राइट क्लिक करो, एक्सिस पे सिंक्रोनाइज एक्सिस, हो गया, ठीक है। अब डुअल एक्सिस सपोज हाउ यू नीड, लेट्स से जो नीचे वाला है, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो सम ऑफ सेल्स है, जो तुम Commercials तो ये है राइट। नहीं नहीं ये हो गया, अभी ये सब तुमने सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ पे एज अ कैसे आ रहा है चीजें, ये ऑटोमेटिक जो है एज अ सर्कल आ रहा है, राइट। यू वांट टू चेंज इट, नाउ लेट्स से यू वांट दी प्रॉफिट टू बी अ लाइन चार्ट, तो प्रॉफिट पे जाके उसको लाइन करो और इसको बार करो, सेल्स को बार करो, सी। तो ऐसे यू कैन डू इट। तो शबात इश्यूज प्रॉब्लम है, बताओ। No, no, I got it. हम लोग डुअल एक्सेस एग्जैक्टली कब यूज करते हैं? सेम एक्स डुअल एक्सिस मतलब क्या है, ये जो एक एक सब कैटेगरी है, ये एक एक एक्सिस है, राइट। हाँ तो बेसिकली अगर मुझे लेट्स से मुझे ये देखना है कि दोनों में ही, मतलब एक ही एक्सिस में मुझे सेल्स भी देखना है, प्रॉफिट भी देखना है। ओके अच्छा, इसको लाइन चार्ट की जगह अगर बार चार्ट कर दो, लेट्स से सम ऑफ प्रॉफिट को लाइन की जगह बार कर दो, तो ये नहीं दिखेगा तुमको, राइट, बिकॉज दोनों बार है। ये क्या हुआ, ये उस पर ढक गया है, ठीक है। सो ऑलवेज, तो इससे क्या हुआ, whenever you are trying to do a kind of a dual axis chart, it's always better कि दोनों का जो दो मेजर का चार्ट है, एक को लाइन रखो, एक को बार रखो, ठीक है। तो दैट विल हेल्प कि क्लाइंट को ये समझने में कि चलो जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ मेरा सेल्स कैसे मूव कर रहा है, वही सेम सब कैटेगरी के लिए, ठीक है। बताओ और कुछ। बता दो, नहीं तो आई विल स्टार्ट देन। आई थिंक यू कैन स्टार्ट। ओके, लेट्स से आज ज्यादा ये नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही थोड़ा सा समझा देते हैं। आज वो एनालिटिक्स पे देखो, ऐसा हम लोगों का ना मोरलेस सब कुछ हो गया है, ठीक है। आज एनालिटिक्स वाला कर देंगे, पेन वाला कैसे क्या समझते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज दिखा दूंगा आज, वो छोड़ के। एंड जिस दिन मैं फंक्शंस समझाऊंगा ना, वेरियस लॉजिकल फंक्शंस, डेट फंक्शंस, कैसे कैलकुलेटेड फील्ड क्या करते हैं फॉर्मूला देके, वो करने के बाद उस दिन मैं वो ये टॉपिक भी आई विल कवर, डेटा ब्लेंडिंग वाला। तो बस ऐसा और कुछ बचा नहीं रहेगा, ठीक है। देन एक क्लास वी विल जस्ट कंटिन्यू फॉर डैशबोर्ड प्रिपरेशन। एक कोई भी रैंडम मैं एक डेटा सेट लूंगा और मैं उससे वी विल ट्राई टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, ओके, ओके सो दैट तुम लोग को भी समझ आए चीजें। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ, अब देख लो, दो तीन चीजें फटाक से दिखा देता हूँ। ओके, अब देखो, एक होता है ना हम लोगों के पास कि डेट फिल्टर, एक अच्छा एक dimensions filter तो you have understood, right? Let's say I take sub category and I take sales here, ठीक है, बार चार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा सब कैटेगरी को फिल्टर्स पे लाता हूँ and I choose from all of this and I get the legend on the right hand side, तो ये तो क्लियर है तुम लोगों के लिए, राइट। कोई भी डिमेंशंस का फिल्टर, राइट। अब मुझे लेट्स से मैं ये हटा देता हूँ, मैं डेट फिल्टर लाता हूँ, ऑर्डर डेट, इसको मैं पहले कॉलम पे लाता हूँ, ठीक है, एंड आई मेक इट ऑन मंथ वाइज, ठीक है, एंड आई टेक लेट्स से सेल्स हियर, ऑटोमेटिक लाइन चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यही सेम चीज को ऑर्डर डेट को मैं फिल्टर पे लाता हूँ,
एंड आई मेक इट मंथ्स को फिल्टर करता हूँ, ठीक है, ऑल दी मंथ्स आर देयर। आप इसमें से लेट्स से आई ओनली टेक सर्टेन, I selected all. if you want to select all you can select all, if you want to select तुम्हारे हिसाब से जो जो तुमको नहीं चाहिए सपोज उस हिसाब से, ओके। एंड यहाँ से सेम राइट क्लिक करके यू कैन शो फिल्टर, राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डेट फिल्टर इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो ये हो गया डेट फिल्टर। नाउ कोई मेजर फिल्टर, ये तो मेरा मंथ वाइज ऑर्डर डेट सेल्स है, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रैग सेल्स टू द फिल्टर, क्या ऑप्शन आएगा मेरे पास, वैल्यूज आएगा, sum average, let's say I click on sum only. Now देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 ये आएगा ऑप्शन, कर रहे हो, क्या क्या आया बताओ। Range of values, at least, at most, Yes. special. नाउ तुमको देखना है कि इस रेंज से उस रेंज तक, यू सेट द रेंज, ओके, फॉर द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ सेल्स, सो यू गेट द चार्ट बेस्ड ऑन दैट। जो एटलीस्ट है मतलब तुम किस कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हो, सपोज लेट्स से फॉर सर्टेन क्या बोलते हैं, मतलब सेल्स व्हिच आर लेस देन अ सर्टेन वैल्यू, यू डोंट वांट टू सी दैट, लेट्स से, ओके, सो तुम उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। और लेट्स से तुम एट मोस्ट तुमको देखना है कि सबसे लो सेल्स कौन सा है, तो हाईएस्ट सेल्स वाला तुम वहीं पे काट कर देते हो, तो यू कैन यूज एट मोस्ट, बाकी कट जाएगा। एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है, 3 ऑप्शन है, वन इज अ नल वैल्यू, मतलब अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको भी तुम इंक्लूड कर रहे हो, मतलब हटा दे रहे हो, सॉरी, हाँ। नॉन नल वैल्यूज, मतलब क्योंकि डेटा सेट में ऐसा बहुत बार होता है कि यू विल हैव नल वैल्यूज एंड नॉन नल वैल्यूज, ओके। एंड अनदर ऑप्शन यू हैव इज ऑल वैल्यूज। So, special में if I select null values, I'm removing null values or selecting यू आर सिलेक्टिंग नल वैल्यूज, non-null values. मतलब कुछ भी, मतलब वहाँ पे null values नहीं रहेगा, right? And यस यस, नल वैल्यूज मतलब सिर्फ नल वैल्यूज जो है उसी का ही डेटा दिखाएगा, then जो okay. कोई मतलब नहीं बनता है। सी देयर आर ऑप्शंस ऑफ कोर्स, व्हाई विल यू चूज नल वैल्यूज, राइट, तो कोई सेंस ही नहीं होता उस चीज का, हाँ। तो ऑब्वियसली यू विल इधर चूज अ नॉन नल वैल्यू या ऑल वैल्यू, राइट, दैट्स इट। तो ये ऑप्शन हो गया, तो गॉट इट राइट। तो मेजर वाला फिल्टर कैसे यूज होता है, डिमेंशंस यू हैव ऑलरेडी सीन, और डेट डेट फिल्टर भी कैसे यूज होता है, गॉट इट। नाउ लेट मी शो कि ये कैसे होता है, क्या बोलते हैं एनालिटिक्स पेन पे। अब देखो एनालिटिक्स पेन पे आओगे, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस हियर, ओके। वन इज अ कांस्टेंट लाइन, वन इज एन एवरेज लाइन, मीडियन वन विथ क्वार्टाइल जरूरत नहीं है, बॉक्स प्लॉट भी उतना यूज नहीं होता है, टोटल्स यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन तो है ही, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस बैंड, डिस्ट्रीब्यूशन बैंड, ये सब यूज होता है। नाउ आई विल एक चार्ट क्रिएट करते हैं। हेलो, Yeah, can hear you now. now let's say I take uh, profit and I take sales, तो मुझे एक स्कैटर प्लॉट दिखेगा, राइट। whenever I take two measures, one in row one in column, it will show me a default, मुझे ये दिखाएगा Aggregation, the topmost. हाँ। तो इसको मैं काम करता हूँ, जस्ट सर्कल कर देता हूँ, एंड लेट्स से और मैं इसको ना डिसएग्रीगेट कर देता हूँ, ठीक है। एनालिसिस पे जाना, इसको डिसएग्रीगेट कर दो, ठीक है, ऐसा आ गया। नाउ अगर मैं इसके ऊपर इसको उल्टा कर ये दूं, ऐसे मेरा तो नहीं है ये analysis, then okay, हाँ, it I got it. ऐसा आया ना, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से
अब एनालिटिक्स पे जाओ, यू कैन ऐड हियर अ ट्रेंड लाइन. ओके, तो ट्रेंड लाइन क्या क्या एक्सप्लेन करता है बेसिकली तुमको? इट शोज अ ट्रेंड ट्रेंड. कि सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कैसे मूव कर रहे हैं, राइट? सो I drag the trend line and see there are 5 options: linear, logarithmic, exponential, polynomial, and power, right? Where did you drag that? I mean, where did you put this trend line? Take the trend line, drag it, and you will in the sheet, and you will see there are 5 options coming up, right? Just click on the drop it down in the linear. आया ना एक, राइट? ट्रेंड लाइन आया. ओके, आप सोचो, अब ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे कर्सर रख दोगे तो you will see something, profit equals to 0.17 whatever into sales plus, right? एक एनालिटिक्स वाला चीज आया है. You all studied, right? Y is equals to mx plus c. पता है? Yes. तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है पता है? पता है ना? But little bit I remember. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. Now there are 2 things you need to keep in mind. Okay? See, these are very advanced stuff. कितना यूज होता है वो पता नहीं मुझे, हार्डली मे बी, बट हाँ यू शुड नो कि कैसे करते हैं. एंड इफ समवन आस्क्स यू कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन तुम क्रिएट किए हो, इसमें जो आर स्क्वायर वैल्यू दिखा रहे हैं या पी वैल्यू दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइट? यू शुड नो, राइट? हेलो, Yes, yes. अच्छा, Actually, I'm working on unmute. ओके ओके, अच्छा. नाउ ये तुम्हारा आर स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है? एनी आइडिया? जो साइंस बैकग्राउंड से हो आना चाहिए, बताओ. नो आइडिया, राइट? No. ये आर स्क्वायर वैल्यू बेसिकली है तुम्हारा, क्या समझाता है कि ये जो एक डेटा मॉडल बना है ना, ठीक है, इस डेटा के साथ ये डेटा मॉडल कितना फिट करता है. ओके, द मोर द आर स्क्वायर्ड वैल्यू, मतलब उतना बेटर है कि उस डेटा मॉडल के साथ ये वाला डेटा बहुत अच्छे से बैठ रहा है. इट फिट्स विद द डेटा मॉडल. दैट इज द, जितना आर स्क्वायर वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है. ठीक है. Yes. नाउ कम्स टू पी वैल्यू. पी वैल्यू क्या है? আইডিয়া? অনেকদিন আগে পড়া হয়ে গেছে না. জাস্ট মনেই পড়ছে না, বুঝতেও পারছি না কি. পি ভ্যালু ইজ বেসিক্যালি দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দি মডেল. বেসিক্যালি তোমার হচ্ছে মেজার্স অফ কনফিডেন্স বলা হয়. ঠিক আছে, পি ভ্যালু তোমার যত বড় হবে, পি ভ্যালু যত কম হবে, তত বোঝা যাবে যে তোমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনফিডেন্সটা বেটার. দিস আর ভেরি অ্যাডভান্স স্টাফ, আমি আর যাবো না, আমি বুঝে গেছি এটা কেউ বুঝতে পারছে না. সো আই এম নট গেটিং ইনটু অল অফ দিস. আচ্ছা, এছাড়া একটা জিনিস দেখে নাও. সো এটা একটা আইডিয়া দেয় ক্লায়েন্টকে কি একটা বেসিক জিনিস, যদি কি আমার ট্রেন্ডটা কেমন সেলসের সাথে প্রফিটের, ঠিক আছে, রিলেশনটা কি, মানে সাপোজ আমি যদি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল প্রফিটকে ধরি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সেলসকে ধরি, তো সেরকম হিসাবে আমার কেমন কাজ করছে স্ট্যাটিস্টিক্সটা, ঠিক আছে.
ওই ফর্মুলাটাই ইউজ হচ্ছে y is equals to ms plus c and nothing else. ঠিক আছে? ওকে, इसके बाद let's say I take ना category in colors. We can't see your screen. क्या खुद से ही चला गया क्या? I can't see. नहीं नहीं, नहीं हो रहा था, हाँ। मुझे ही पता है. अब अभी तक तो दिख रहा था ना. अच्छा, ओके, पता नहीं. ओके, तो यहाँ पे रहने दो. So How did you get 2 lines? I'm showing it. Take category in colors. 2 नहीं 3 लाइन जाएगा. ठीक है, क्योंकि 3 कैटेगरी है ना. वन इज फर्नीचर, वन इज ऑफिस सप्लाईज, वन इज टेक्नोलॉजी. सो हर एक का ट्रेंड लाइन भी तुमको दिखा देगा कि किस हिसाब से ये काम कर रहा है. But ठीक है. हाँ. okay, got it. Okay. So this is what trend line is all about. ठीक है. Now अगर मैं कुछ और दिखाऊं अभी यहाँ पे, let's say I'm just removing everything. I take subcategory. I take no, wait. Let me take category and subcategory and sum of things. Right? This is okay? हो जाए, समझ जाओ तो बताना. मैं तुम लोग जब कर रहे हो तो अगर मिल जाए तो. हो गया ना? I have one more question. Like for all this kind of results, we always put it in rows and then we swap the column and rows, right? हाँ But we can just directly put it there, right? There's हाँ, no you can do. difference. No, no, बात एक ही है. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 3+1 4 and 5-1 भी 4 होता है. मतलब ऐसे करके नहीं लाना है. So okay. Now let me go to analytics field. Okay. एक एक करके समझा देता हूँ. देखो, कांस्टेंट लाइन. व्हाट इज अ कांस्टेंट लाइन? मतलब मैं एक कांस्टेंट लाइन आई वांट टू ड्रॉ ओवर दिस चार्ट. ओके, व्हाट विल दैट कांस्टेंट लाइन, उसका वैल्यू क्या होगा? आई विल डिसाइड. नाउ लेट्स से कंपनी मुझे बोलता है कि मुझे एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दो, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट. लेट्स से कि मुझे देखना है कि ये जो 1000K का बैरियर कौन कौन सा सब कैटेगरी और उसके मतलब कौन कौन सा कैटेगरी में कौन कौन सा सब कैटेगरी क्लियर किया है. ओके, which all products, which all category and those subcategories have cleared the threshold point of 1000K value. ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है तो. How did you define that thing? Like, ये सपोज सवाल है. okay. ओके, क्लाइंट का. I want to see a constant line, okay, over this chart, which will show me a line जो threshold point दिखाएगा एक, that is 1000K. तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा सब कैटेगरी एंड कैटेगरी हैव रीच दैट मार्क ऑफ 1000K. तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है. राइट? Correct. नाउ आई ड्रैग द कांस्टेंट लाइन. देखो एक ऑप्शन आएगा रेफरेंस लाइन टेबल बोल के, वहां पे ड्रॉप कर दो. ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन पॉपअप आया ना वैल्यू बोल के, जो तुमको देना है. 1000K. यस, तो 100,000 एंड देन और 3 0. अब 3 0 की जगह मैं 1 कर दूंगा कि ताकि 1000 क्रॉस कर जाए. गॉट इट?
Yes. Got तो it. इससे तो इससे क्या हेल्प हुआ? The threshold, it's You can was yes, you 1,000. can edit this also. Like how? You can ये लाइन को तुम डार्क कर सकते हो, ठीक How है? come your is coming in grade options? Like, are you getting a pop-up that I can see or नहीं नहीं, okay? ये जो लाइन है ना, हाँ. वहां पे राइट क्लिक करो. But why my line is शेयर करो स्क्रीन. लेट मी सी. I think I did something wrong. करो करो, समझा देता हूँ थोड़ा. Okay, so but should sorry. नो नो नो, How do I delete this? Like मैंने जो किया ना होल्ड. मुझे ये नहीं चाहिए तो You did 100K, हाँ. not 1000K. उसको 1000. एडिट करो पहले. How do I edit this one? Like उस लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक करो. लाइन पे, उस लाइन पे राइट क्लिक करो. I don't see any options. नहीं होल्ड. I mean बस मुझे ये whatever I did, I need to हाँ, delete. यहाँ पे आओ ना, जो दो छोटा वाला है ना, एकदम राइट साइड पे आओ. वो लाइन पे क्लिक करो. दो छोटा वाला है ना एकदम बीच में. हाँ. हाँ, वहाँ पे अब राइट क्लिक करो, Okay. एडिट करो. Okay. हाँ, अब वैल्यू को चेंज करो. 1. नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ. 10. हाँ, यस. नाउ प्रेस ओके. गॉट इट. Okay. Okay. ओके. नाउ ये लाइन बहुत फीका है. यू वांट टू मेक इट अ डार्क कलर. क्लिक करो वहीं पे, फिर से लाइन पे राइट क्लिक करो, एडिट करो. Format. फॉर्मेट, एडिट, जो भी करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मेट पे जाके वो लाइन को थोड़ा हाँ, रेफरेंस लाइन, लाइन को जाओ, चेंज करना है करो, वहां पे डार्क कर दो. ये तो तुम इसको डार्क किए हो. तुम एडिट पे जाओ, जो सिंपल मेथड है पहले वो दिखा देता हूँ तुमको. उस पे जाओ. वो तो तुम ये इसको काला कर दिए हो. हाँ, एडिट पे जाओ. एडिट पे जाओ, नीचे फॉर्मेटिंग लाइन पे आओ. लाइन लाइन लाइन, यस, क्लिक करो. यस, डार्क. पहले तो वो चूज करो, द फर्स्ट वन. नान के बाद जो फर्स्ट है वो चूज करो. okay. Yes, Okay. This okay. वो This चूज करो एंड देन मेक इट डार्क और ब्लैक कलर. अब ओके कर दो. अब बाहर क्लिक करो, ऐसे तुमको दिख जाएगा, ठीक है. okay. So this all you can do. So this is a constant line. Okay. अब मैं शेयर करूं. दिख रहा है क्या? No. I mean दिख रहा है but it's not the full screen. हाँ, now we can see. Okay. So constant line हो गया, right? अब मुझे लेट्स से मैं रिमूव कर देता हूँ. वैसे ही राइट क्लिक करके कांस्टेंट लाइन हटा दो, ठीक है. तो रिमूव का ऑप्शन आएगा. नाउ लेट्स गेट ऑन विथ द एवरेज लाइन. ओके. मैंने पहले भी एक चीज समझाया था. ओके. ये जो तुम्हारे पास है ना, ये जो पूरा चार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? एक एवरेज लाइन को ड्रैग करो पहले. यू विल सी 3 ऑप्शंस. क्या क्या है? टेबल, पेन एंड सेल, राइट? अगर टेबल चूज करोगे तो पूरा जो चार्ट है उसके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अगर पेन यूज करोगे तो क्या होगा? ये जो कैटेगरी वाइज एक पेन क्रिएट हुआ है ना, हर एक अलग अलग, इसको पेन बोलते हैं. Okay. और सेल मतलब ईच इंडिविजुअल बार इज अ सेल, ठीक है. लाइक चेयर्स एक सेल है, फर्नीचर एक सेल है, ठीक है. अब पहले हम लोग लेट्स ड्रॉप इट ऑन द टेबल. ओके. एवरेज लाइन. तो इससे क्या आता है? Normal average. नॉर्मल एवरेज फॉर
ऑल द कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लो, ठीक है। हम्म Now, instead of this, if I remove this, I drag the average line and I drag it to pane, drop it on pane. Now मुझे हर एक सब कैटेगरी का, हर एक कैटेगरी वाइज मुझे एवरेज दे रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सा, लेट्स से एक्सक्यूज मी, लेट्स से कि फर्नीचर कैटेगरी में कौन कौन सा मेरा सब कैटेगरी है जो मेरा एवरेज को क्रॉस किया है, राइट। देन पहले वाला क्या था, समझाओ। पहला जो एकदम फ्लैट एवरेज लाइन था वो क्या था? It's out of 3 categories, a general average one. एंड ये सेल्स, एवरेज सेल्स के ऊपर, Average sales, हाँ. टोटल सेल्स के ऊपर जो एवरेज निकलता है उसको वो फ्लैट लाइन कर दिया। हम्म बट दिस एवरेज इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन कैटेगरी। हम्म उस कैटेगरी का सेल्स के हिसाब से एवरेज क्या है, ठीक है। हम्म तो दिस विल गिव द क्लाइंट अ मोर इन डेप्थ इंटेल, राइट। हम्म सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ अगर मैं इसके ऊपर लेट्स से कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, लेट्स से पहले मैं तो इसको रिमूव करता हूँ सारा, फिर मैं आई लेट मी ड्रैग एवरेज लाइन टू सेल। ये हर एक सेल का एक एवरेज दे रहा है, देख रहे हो, हम्म बट विल दिस हेल्प यू? no नो, सो नो पॉइंट, सो रिमूव इट। देखो देयर आर मेनी ऑप्शंस, ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि वी हैव टू यूज एवरीथिंग। टैग बटन दबाओ, आ जाएगा, चला जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो विथ रेफरेंस लाइन। कस्टम में है ना नीचे, अब रेफरेंस लाइन। नाउ ड्रैग द रेफरेंस लाइन टू द टेबल, ओके। अब यहाँ पे रेफरेंस लाइन कैसे यूज होता है पहले देखो। तुम्हारे पास पॉपअप आया, यू हैव सिलेक्टेड एंटायर टेबल, राइट। अब तुम्हारे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है, ओके, वैल्यू पे, और ये तुमको बेसिकली एवरेज दे रहा है रेफरेंस लाइन पे, ठीक है। जैसे पहले था एवरेज, वैल्यू के पास सम ऑफ सेल्स के बाद एवरेज है ना। अब तुमको एवरेज नहीं चाहिए, बट यू डोंट वांट टू सी द रेफरेंस लाइन बेस्ड ऑन एवरेज। तुमको क्या देखना है? लेट्स से यू वांट समथिंग एल्स, यू वांट टू सी द मैक्सिमम, लेट्स से यू वांट टू सी द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करोगे, क्लिक करो, क्या देखो, तो रेफरेंस लाइन तुम्हारा कहाँ जाके खत्म होगा? जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है। सो ये तुम दिखाना चाहते हो, लेट्स से कंपनी देखना चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमम जो सेल्स है वो किसने टच किया है, और उस लेवल पे कौन कौन अभी पहुंच रहा है या पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। दैट विल हेल्प द कंपनी। अगर मैं मैक्सिमम को मिनिमम कर दूं तो ये क्या शो करेगा? कि मेरा मिनिमम जो है वो कौन सा दो सब कैटेगरी है और कौन से कैटेगरी में पड़ता है, और भी कोई तो नहीं है जो इस लेवल पे है, राइट। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, हाउ यू प्रेजेंट इट, ओके। कांस्टेंट लाइन अगर क्रिएट करोगे तो ये क्या होगा? दिस इज बेसिकली वही जो पहले हम लोग किए हैं अभी कुछ देर पहले, ठीक है। सो यहां से भी तुम बहुत सारा चीज कर सकते हो, गॉट इट। सेम वे में अगर मैं इसको हटा देता हूं अभी के लिए, लेट्स से आई रिमूव दिस, और वही मैं रेफरेंस लाइन को मैं पेन पे डाल देता हूं, तो हर एक पेन के लिए आ जाएगा एवरेज, राइट। करेक्ट। सेम मैं हटा देता हूं, तो इसका जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? रेफरेंस बैंड। व्हाट इज अ रेफरेंस बैंड, हाउ वी यूज इट? लेट्स ड्रैग द रेफरेंस बैंड टू द टेबल, ठीक है। अब देखो, जैसे टेबल पे क्रिएट किए हो, ये क्या दिखा रहा है? राइट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या है, क्या सिलेक्ट किया हुआ है? पहले ये देखो, जो पॉपअप आया तुम्हारा मिनिमम। मिनिमम। सो देखो, एक
ऐश कलर का शेडेड पोर्शन क्रिएट हुआ है ना, जो मिनिमम से स्टार्ट होता है, देखो नीचे नहीं है, जस्ट मिनिमम से चालू हुआ है, राइट? पूरा नीचे तक नहीं है, राइट? नो, यस। अब सोचो इसको मैं मैक्सिमम करता हूं, क्या आएगा? बताओ क्या है? only the furniture top, the maximum ये 1180. पूरा ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? क्यों बोलो? No, I don't get this. It is not selecting full for me. लेट्स से मैं बैक करता हूँ पूरा। रेफरेंस बैंड को तुम पहले टेबल पे लाओ, ठीक है, जो मिनिमम था ऑलरेडी। अब इसमें ना दो चीजें तुमको करना है। तुम देखो एक बैंड फ्रॉम एंड बैंड टू, मतलब यू विल सिलेक्ट कि ये जो ऐश कलर का जो एक बैंड क्रिएट होगा, कहाँ ये से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक, ठीक है? क्योंकि मेरा देखो पहला वाला सिलेक्टेड है मिनिमम से मैक्सिमम तक, Got it, got ठीक it. है? अब लेट्स से तुम इसको देखना चाहते हो मिनिमम से एवरेज तक, क्या आएगा देखो, सिलेक्ट करो, खुद सिलेक्ट करो, देख लो। यू आर गेटिंग मिनिमम से एवरेज तक, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अ बैंड अगर तुम इसे कर दोगे, क्लाइंट के लिए कैसे क्या हेल्प होगा, ये जब वो बैंड देखेगा वो ये देख पाएगा, चलो ओके ठीक है, मिनिमम से ये एक एवरेज का बैंड है, इसमें से कौन कौन सा पार्टीज है। And we can do the same thing with profit also, right? Instead of ये हाँ sales, हाँ we हाँ can हाँ, do the profit. एग्जैक्टली सेम थिंग। Both sales and profit एक साथ लेके कर सकते हैं क्या? फिर तो तुम्हारा डुअल एक्सिस करके फिर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कर सकते हैं, right? हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो। dual axis करके, if we just merge it and then we use all this band to show this sales to profit, ऐसे मतलब कर सकते हैं वो सब हाँ या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स। वही तो फायदा है, नहीं तो टैबली यूज करने का क्या है, वो तो बेसिक एक्सेल ही हो जाएगा। I think now we are getting it. मतलब exactly करना करो, हाँ करोगे तो समझोगे, नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे समझोगे? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर वीकडेज पे बैठ रहे हो चीजें लेके और तुमको कहीं पे इशू आ रहा है, कॉन्टेक्ट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मुझे ये समझ, अगर उस वक्त तुमको समझ में आ जाएगा, वो तुम्हारे ध्यान में भी रहेगा। We are thinking you might be busy during weekdays. अगर बिजी भी होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मैं होल डे बिजी हूँ, आई विल हैव टाइम कि वो आधा घंटा निकाल के मैं दे दूं कि हाँ तुम लोग सीख जाओ वो चीज, है ना? Okay. अच्छा, ये हो गया रेफरेंस बैंड, ठीक है? ये सेम वे में रेफरेंस बैंड अगर तुम पेन पे डालोगे तो अलग अलग आएगा, पेन पे सेम हर एक पेन का अलग अलग तुम कर सकते हो, राइट? जैसे होता है नॉर्मली, एंड सेम होता है हर एक सेल का भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन बैंड, ओके? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बैंड को मैं टेबल पे डालता हूं। अब यहाँ पे एक कुछ ऑप्शंस आता है, ठीक है? क्या ऑप्शंस आता है? 60%, 80% ऑफ एवरेज। ये देखो, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर कंपनी का कुछ है, ठीक है? कंपनी बोलता है मुझे एवरेज नहीं देखना है, ठीक है, मुझे देखना है कि 60% वैल्यू ऑफ द एवरेज कहाँ पड़ता है और 80% ऑफ द एवरेज वैल्यू कहाँ पे पड़ता है। तो मुझे, मैं देख लूंगा कि कौन कौन सा पब्लिक, मतलब होता है ना कि ये कब यूज होता है। गिविंग एन एग्जांपल, ओके, लेट्स से, अच्छा एवरेज छोड़ो, मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज पे भी जाता हूँ, परसेंटेज 60 80, एवरेज की जगह मैं टोटल कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, सम पे नहीं, टोटल पे। एक सेकंड, What is the difference between अच्छा sum as in sum of sales? नहीं सम नहीं, मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, परसेंटेज पे रख रहा हूँ, ठीक है? 60 एंड 80% करके है, मैं उसी पे रख रहा हूँ अभी के लिए। ये परसेंटेज तुम चेंज कर सकते हो। Percentage of
average. एवरेज एवरेज देखो, परसेंट ऑफ सम ऑफ सेल्स एंड एवरेज, ठीक है। हम्म, अब ये 60-80 को तुम चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट 70-90, ओके। अब मुझे एक्सप्लेन करो, एक सिंपल सा चीज है, ये कैसे हेल्प होगा एक क्लाइंट को, ये वाला डेटा से, ये वाला जो चार्ट बना के दोगे सपोज, तो हाउ विल दैट हेल्प द क्लाइंट और द सीईओ, लेट्स बोलो। okay. ओके, That is also a range, right? That we रेंज, हाँ define. रेंज, So, एवरेज का 90% वैल्यू और एवरेज का 70% वैल्यू। 90%. अब देखो, मंथ के स्टार्टिंग में लेट्स से यू आर डीलिंग, द कंपनी इज डीलिंग विद सेल्स पीपल, ठीक है, इन द कंपनी, ओके। हर एक को टारगेट दिया जाता है, हम्म, कितना सेल्स तुमको करना है एंड ऑफ द डे। हम्म, अब नाउ कंपनी को मिड में लेट्स से मुझे देखना है कि 15th ऑफ मंथ को जाके कि कौन कौन सा बंदे ने मेरा एवरेज जो है, जो मैंने एवरेज पकड़ के चल रहा हूं कि मेरा इतना वो कर लेगा सेल्स, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज, 70-90 80-90, कितना परसेंटेज वो अब तक अचीव कर लिया है एवरेज में। मैं अगर देखूं समवन इज बिलो 70 बिलो 50, तो मैं क्या करने वाला हूं उन लोगों के साथ, आई हैव टू पुश देम, राइट, कि बस हो नहीं रहा है, थोड़ा यू हैव टू पुश योरसेल्फ इन द मार्केट सो दैट योर सेल्स वैल्यू गो अप, राइट। correct. दैट इज व्हेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन थिंग वर्क्स फॉर द क्लाइंट। उसको अगर देखना है ऐसे कि मेरा कौन कौन सा सेल्स पर्सन कहाँ तक पहुंचा है, एवरेज भी पहुंच पाया क्या अभी तक, तब जाके ये हेल्प होता है। But for that, we need to define those names or whatever we need to हाँ check हाँ, to मैं ऑफ figure कोर्स, out. वो तो तुम, तब तो तुम्हारा ये चार्ट चेंज हो जाएगा। Hmm, मैं बोल रहा हूँ कि कब यूज होता है नॉर्मली, hmm, ठीक है। okay. तब यू विल जोन वाइज तुम देख सकते हो, सेल्स पर्सन का नाम डाल दोगे रादर देन सब कैटेगरी, यू विल टेक द सेल्स पर्सन नेम, ठीक है, उस हिसाब से Hmm. कर दोगे। सो दिस इज ओके, राइट, Yes. Yes. ओके। अब जो मॉडल है, जो दो ऑप्शन है, एवरेज विथ 95% सीआई, मीडियन विथ 90%, ये सब हम लोग यूज नहीं करते टैब्ल्यू में, अनटिल एंड अनलेस कोई डेटा मॉडल का बात चल रहे हो टैब्ल्यू में। अब देखो रियल लाइफ में नहीं होता है ये सब, ठीक है। तो What does it mean exactly? Man, एवरेज मैं दिखाई देता हूँ, model मतलब क्या? एक डेटा मॉडल क्रिएट होता है ना, सपोज डेटा मॉडल क्या होता है, तुम जब ये जो पेन पे तुम डेटा लाए हो ना डेटा सोर्स पे, ये तो एक लाया हूं मैं, एक टेबल, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल को यहाँ पे लाता हूँ, इसके साथ ऐड करता है, राइट, Hmm. इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप, राइट। Hmm. नाउ इफ आई ऑल्सो ड्रैग रिटर्न्स, अब एक यूनियन जो भी है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो Hmm. ये सब तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर क्रिएटिंग, रुको मैं पहले इसको ठीक कर, basically what you are creating relationships, you are creating unions, you are creating let's say joins, right। Hmm. तो ये सब क्रिएट करके तुम एक डेटा बनाए हो, टोटल तुम्हारे पास 3-4 टेबल था, तुम सबको कंबाइन करके एक चीज बनाए हो, दैट इज योर डेटा मॉडल, राइट। Hmm. सो उस चीज का कुछ एवरेज वैल्यू, अब एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका क्या है सपोज, पहले मैं ये सबको हटा देता हूँ।
अगर एनालिटिक्स पे जाओ और यहाँ पे एवरेज विद 95% सीआई में टेबल पे डालो, तो ये क्या दिखाता है मुझे? एक एवरेज दिखाता है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, क्लिक करोगे जब रखोगे माउस, तो एक चीज दिखाएगा तुमको, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एवरेज समथिंग समथिंग, राइट? हेलो। Yes. Mhm. अच्छा, मुझे Yes. 2 मिनट दोगे? आई एम जस्ट कमिंग बैक, ओके? Yeah. गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी, हाँ, हेलो। Yeah, yeah. ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है पता है किसी को? प्रोबेबिलिटी, एनीवन? The probability, I know, but the interview. मुझे पता- सर के ऊपर से जाने वाला चीज हो गया अभी। हाँ? मतलब बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उस मतलब एक डेटा सेट का मतलब कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यू पीपल रिमेम्बर लाइक हाइपरबोला, पैराबोला? टू मच ना? अंडरस्टैंड। देखो, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और ये बेसिकली थी एवरेज लाइन, ओके? तो एवरेज विथ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब ये है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। मतलब ये तो एवरेज लाइन है, ठीक है? うん और ये
एक बैंड बना लेता है अपना, एक डिस्ट्रीब्यूशन बैंड, जिसको वो बोलते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है मेरा 95% कॉन्फिडेंस, 100% कभी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं होता है। तो ये 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल, उस बीच में मेरा एवरेज क्या आ रहा है, ठीक है। अब इट्स वेरी यू नो, ये एलाबोरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा अभी, क्योंकि ठीक है, then फिर छोड़ देते हैं, वैसे भी ये यूज नहीं करते ये हैं। यूज नहीं करते। एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन। मैं इलेबोरेट कर सकता हूँ, देन प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा अभी, ठीक है। सो दैट विल बी मोर कंफ्यूजिंग एंड नथिंग एल्स। सो ठीक है, ये वाला हो गया। अब एक लास्ट बचा रहता है, मैं दिखा देता हूँ सब। लेट्स टेक क्या ले सकते, क्या ले सकते, कैटेगरी वन हुआ है। जो भी है, लेट्स टेक कैटेगरी, लेट्स टेक सब कैटेगरी। अच्छा नहीं, मैं पहले सर्च कर लेता हूँ। लेट्स से आई टेक ऑर्डर डेट हियर, ओके, ऑर्डर डेट, एंड आई मेक इट लेट्स से बेस्ड ऑन ईयर लिया मैंने, एंड देन उसको मैं क्वार्टर कर लिया, ठीक है। एंड एक बार ऑर्डर डेट को मैं यहाँ पे फिल्टर पे डाल दिया, उसको ईयर्स कर दिया। मैं 4 साल की जगह में जस्ट 13 एंड 14 ले रहा हूँ, अप्लाई, ओके, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टेक कैटेगरी, लेट मी टेक सब कैटेगरी, बस दोनों ही रखता हूँ। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, लेट्स टेक सेल्स इन द टेक्स्ट कॉलम। यहाँ तक सबने कर पाया? हम्म हो गया, राइट? हम्म अब ये एक टेबल फॉर्मेट बन गया तुम्हारा, राइट? हम्म अब तुमको टोटल करना है, टोटल सब टोटल कहाँ से करोगे? Why am I getting 2011 to हाँ है ना, 14? Okay. हाँ तो फिल्टर पे जाओ, वहाँ पे दो ईयर को हटा दो, इसीलिए। Mm, mm, um, ये फिल्टर से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लाइक हाउ डू यू वांट टू फिल्टर ऑन ऑर्डर डेट? तो पहले फिल्टर पे ईयर, ऑर्डर डेट है ना, हाँ, उसको ड्रॉप करो फिल्टर पे, देन आई सेलेक्ट एज ईयर्स। ईयर, हम्म नेक्स्ट करो, 4 ऑप्शन आ रहे हैं अच्छा, ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें से यूट्यूब 13 14, ठीक है, ओके। हम्म आ गया अभी। हम्म अब मुझे सब टोटल चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब चाहिए। गो टू एनालिटिक्स, एक टोटल वाला ऑप्शन देख रहे हो? Why did I take odd? एक तो okay, okay. So always to make it this order date, मतलब yearly and quarterly, we need to take 2 order date and then we have to do it like एक year wise and one is quarterly. नहीं नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब फिर से दिखाता हूँ, देखो। एक सेकंड, लेट मी टेक ऑर्डर डेट, ठीक है, order date to columns. ओके। हम्म मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करता हूँ पहले, हाँ हम्म नॉर्मल, हम्म हम्म ओके किया, हम्म प्लस साइन आया ना एक, uh, हाँ, बस क्लिक करो, क्वार्टर ही आएगा। अच्छा, फिर क्लिक करोगे, मंथ आएगा। ओके वो ऑटोमेटिक है, वो कर लेता है टाइपिंग खुद से, ओके ठीक है। ओके ओके, गॉट इट। देन ऑर्डर डेट मैं फिल्टर पे फिर से डाल देता हूँ, ईयर्स करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, अप्लाई ओके कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी, एंड लेट मी टेक सेल्स इन द टेक्स्ट, ठीक है, हो गया। हम्म Done. अब मुझे टोटल करना है,
लेट्स से फर्नीचर का ये कितना टोटल है मुझे कैसे पता होगा, राइट? है ना? हम्म एनालिटिक्स पे जाओ, टोटल्स पे जाओ, हम्म वो टोटल को पहले तुमको क्या चाहिए, रो सब टोटल चाहिए, कॉलम सब टोटल चाहिए, पहले मैं सब टोटल सब टोटल मुझे दे देगा, सब टोटल्स पे ड्रॉप कर दो, हम्म आई हैव ऑल दी सब टोटल्स, ठीक है? हम्म हम्म अब ये अगर मैं कॉलम ग्रैंड टोटल्स करता हूँ, हर एक कॉलम का ग्रैंड टोटल कर देगा, तो कर दिया है ग्रैंड टोटल, राइट? हर एक कॉलम का ऐड करोगे तो तुमको ये वाला मिलेगा, ठीक है? सेम वे में अगर मैं रो का ग्रैंड टोटल करता हूँ तो वो भी आ जाएगा। हम्म तो दिस इज लाइक अक्यूमुलेटिव, कैसे तुम कर सकते हो समेशन वगैरह चीजें, यही है, ठीक है? and I can do it for any kind of chart. हाँ मतलब हाँ सब, हाँ सब। हाँ चार्ट तो तुम बाद में बनाओगे, पहले एक टेबल फॉर्मेट में ये सारा डाल दोगे ऐसे, है ना? फिर तुम इसको चार्ट में ले सकते हो ना। तुम जब ओके। टोटल सब टोटल करोगे पहले तो तुम एक टेबल फॉर्मेट में करोगे ना, उसके बाद यू कैन पुट इट इन चार्ट, एनी चार्ट यू वांट। इसके लिए कौन सा वाला चार्ट सही रहेगा? हाउ विल आई मीन, और ये क्लाइंट ही दे विल टेल मी? और नहीं, नॉर्मली देखो ये सब के लिए ना, जिस डेटा वाइज सब टोटल एंड ऑल ये होता है, ये तो तुमको मिल ही जाता है। सपोज अगर मैं दूसरे शीट में जाता हूँ, ठीक है, हम्म मैं एक सब कैटेगरी सपोज लेता हूँ और मैं सेल्स लेता हूँ, हम्म तो सेल्स का तुमको क्या मिलता है, ये क्या है, दीज आर एक्यूमुलेटेड फिगर्स ओनली। हाँ तो करेक्ट। तो बेसिकली टेबल फॉर्मेट में वो नहीं रहता है, इसमें तो वही रहता है। अगर कोई चार्ट दिखाओगे वो तो एक्यूमुलेटेड फिगर्स ही है, करेक्ट करेक्ट। टेबल फॉर्मेट में एक्यूमुलेटेड नहीं होता है, तो वो तुम एक्यूमुलेट करके दोगे। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ टेबल फॉर्मेट, वो टेबल में ही रहेगा, वो नॉर्मली चार्ट में दिखाने का जरूरत नहीं है। समटाइम्स क्लाइंट डू आस्क यू कि मेरे को एक टेबल फॉर्मेट चाहिए देखने के लिए, ठीक है, तो तब वैसा करके देना है, ठीक है? हम्म। अच्छा, अभी मैं अगर फिर से यहाँ पे जाता हूँ, मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, करो। अरे यार, सब चला। अच्छा, तुम अगर सेल्स पे भी जाओगे, ये जो ड्रॉप डाउन है ना, टेक्स्ट पे मैंने जो सेल्स लिखा है, ठीक है, वहां पे देखो एक ऑप्शन आएगा, नीचे जाओगे तो एक आएगा टोटल यूजिंग ऑटोमेटिक, साफ वगैरह एक देख रहे हो, हम्म एक आएगा मेजर वाला चीज, वेयर इज दैट? अच्छा हाँ 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 करेक्ट। यहां से तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? इफ यू सिलेक्ट लेट्स से क्विक टेबल कैलकुलेशन में यू वांट टू सी परसेंट ऑफ टोटल, तो ये सारा परसेंट ऑफ टोटल के हिसाब से यूज होगा। नाउ एक चीज हमेशा याद रखना, डिफॉल्ट बेसिस पे टैब्ल्यू का कैसे कैलकुलेशन होता है पता है? ये जो सब टोटलिंग तुमको देगा 100% के बेसिस But पे। you selected this percentage, right, from that measure, right? हाँ, Measure या quick table calculation? नहीं, आई सिलेक्टेड इट फ्रॉम क्विक टेबल कैलकुलेशन, परसेंट ऑफ टोटल, Percentile, right? Okay, परसेंट ऑफ टोटल, okay. Hmm. ठीक है? अब देखो कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है? You do not, you have total after Q3, you have total, but you do not have that grand total option. How am I getting this grand total option? मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वही समझा रहा हूँ, अच्छा। ठीक है? टैब्ल्यू का जो डिफॉल्ट फीचर्स है, दो ऑप्शन होता है तुम्हारे पास। एक जो डिफॉल्ट होता है, टैब्ल्यू हमेशा अक्रॉस कैलकुलेट करता है, नॉट डाउनवर्ड्स, अक्रॉस, ठीक है? इसीलिए यू विल सी दिस इज 42.29 মানে আমি বুঝতে পারলাম না। বোঝাচ্ছি। অ্যাক্রস মানে হচ্ছে হরাইজন্টাল বেসিসে 100%টা ক্যালকুলেট করে, নট ভার্টিক্যাল বেসিসে, এটা ডিফল্ট।
মানে এই যে বুক শেলফটা বুক কেসেস দেখতে পাচ্ছ ফার্নিচারের, হুম ও কিন্তু তোমাকে এই বুক কেস চেয়ার ফার্নিচিং এই হিসাবে টোটাল দিচ্ছে না, ও কি করছে অ্যাক্রস ক্যালকুলেট করছে করে এটা 42.29 দিচ্ছে। হুম দেন 2014 এরও একটা কিছু করে 57, তা দিস প্লাস দিস ইজ 100, রাইট? হুম সো default calculation pattern is across the table, not down table. মানে ধরো আমি তোমাকে যদি এখানে যাই, এখানে বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো তো? বাট টেকনিক্যালি তো সেটাই, লাইক ইট শুড বি লাইক দ্যাট, রাইট? ইফ হ্যাঁ আই, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ একদমই তাই। তো ওটা ওরকম ভাবে ওরা ক্যালকুলেট হুম করে। এবার সাম অ্যাভারেজ এগুলো তুমি যা যা এখানে দিতে চাও ইউ ক্যান গিভ অল অফ দ্যাট, ঠিক হুম আছে? হুম তো এইটাই হচ্ছে মানে বেসিসটা এটা। এবার এই যে তুমি বললে না একটা টোটাল দেখতে চাই আমি, হুম এবার আমি যদি এটা তো রো আছে, তা রো টোটাল যদি করে দিই দেখো 100% চলে আসবে সাইডে, দেখো, হুম ঠিক আছে? বুঝতে ইস্যু? এনি প্রবলেম? নো, গট ইট। गॉट इट राइट? হুম सो टोटलिंग एंड ऑल ये सब ओके है, शाबाश, सब ठीक है तो? Yes, yes. ওকে, তাহলে দেখো অ্যানালিটিক্স ক্লাসটাও যেটা ছিল সেটা আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ওকে, হুম নাও উই আর ডান উইথ কিছু ফাংশনস আমি শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? লজিক্যাল ফাংশনস, কিছু ডেট ফাংশনস যেগুলো নর্মালি ইউজ হয়। ওকে, Can you just হ্যাঁ for our practice, okay, for the next class, like, হ্যাঁ can you just give us the topics that is widely used, like মানে widely used word, মানে যেটা হি main use হয়, right? দেখো মেন আমি বুঝে গেছি তোমার কোয়েশ্চেনটা। সি, Because we were trying for this lollipop chart and all, নট রিকোয়ার্ড, হ্যাঁ ম্যাম আমি right? বলে দিই। So সি হোয়াট ইউ শুড নো। बांधने का कपड़ा है वो। हाँ हाँ, वैसे वैसे इसके ऊपर डालो। अच्छा देखो, मेजर चीज क्या है, ठीक है? hmm which type of charts are important for your analysis? Okay, bar chart, any kind of bar chart, stacked bar chart, hmm all axis chart, pie chart, uh, donut chart create करना सीखो, very important बाद में आएगा। scatter अगर if you are using tableau hmm then scatter plot, hmm okay, and what is this one, scatter plot, hmm then you have tree maps, three maps, okay. line chart, okay, আমি একটুখানি লিখে নিচ্ছি, ঠিক আছে? हाँ देखे नाओ। হুম হুম Since you are using tableau, map chart, হুম uh ম্যাপ চার্ট অ্যাজ ইন ওই লঙ্গিটিউড, ওই yes হুম okay. map chart, tree map, line chart, area chart, হুম dual axis, হুম ওগুলো লিখে নিয়েছো ব্যাস। আর অ্যাজ মানে খুব একটা যে ইউজ হয় ওরকম না, স্ক্যাটার প্লট লিখে নিয়েছো হুম বাস, দিস আর মোর অর লেস ডান। and ওকে, main topics like filter is হ্যাঁ there, then ওই main topics গুলো। ফিল্টার্স, হুম ফিল্টার্স না জানলে কিছুই করতে পারবে না। ফিল্টার্স, সর্টিং, sorting। সর্টিং, হুম তোমার অ্যাকশন হাইলাইট এন্ড অ্যাকশন ফিল্টার। কেন অ্যাকশন ফিল্টার দরকার? বিকজ না হলে একটা একটা গ্রাফ চেঞ্জ করলে অন্য গ্রাফে চেঞ্জই দেখতে পারবে না। So you need to know action filter, how to use it. হুম Action So, filter, हाँ Hmm. हाँ ठीक है। give us the data set to practice. You practice with this data set only, na? See, we are constantly doing subcategory, category, and all of this. I haven't touched market, and there are so many things are there, Hmm. so many dimensions. You try things on your own, na? Yes, yes, we are trying. Like we are creating new things. नहीं, मैं बोल रहा हूँ रीजियन लेके ट्राई करो कुछ, ठीक है? कम अप विथ समथिंग एल्स, रीजियन लेके काम करो, मार्केट लेके काम करो, देन लेट्स से कि सी आइडियाज आना चाहिए। ओके, यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि मैं एक कस्टमर को मैं क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है? यूनिक क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ।
ओके। यू नो, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, बट पहले सीख लो चीजें। अगर नहीं पता होगा कैसे करना है, देन तो हिचकिचाहट, मतलब यू विल बी लाइक स्टम्बलिंग अपॉन द थिंग्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। बट अगर तुमको जब पता हो जाएगा चीजें ना, on a constant basis when you will be doing things, you know, in today's world you can use these AI tools in a much better way. Okay, like you have a data set. Okay, you have all the columns there. ChatGPT से पूछो ना कि मेरे पास एक ये वाला डेटा सेट है, आई हैव दिस मेनी कॉलम्स विथ मी, ये कॉलम ये डिफाइन करता है। ओके, व्हाट आर द एनालिसिस दैट आई कैन डू विथ दिस। वो तुमको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। देन यू डू दैट ना, यू प्रिपेयर अ डैशबोर्ड। नाउ तो यू पीपल नो कि कैसे क्या करते हैं, राइट? आइडिया तो है हर चीज का, सेट क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, एक्शन हाईलाइट, सब कुछ पता है। तो व्हेन यू वो एआई को एक प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे ये स्टडी करके बताओ कि मैं क्या क्या एनालिसिस कर सकता हूँ, इट विल गिव यू दैट। यू नो व्हाई इट विल हेल्प यू। तुम हर एक कंपनी अलग होता है, राइट? तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का डेटा सेट आएगा, किसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, यू डोंट नो। टुडे यू माइट बी वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी का डेटा सेट लेके काम कर रहे हो। कल हो सकता है यू विल बी वर्किंग विद अ डेटा सेट ऑफ अ, लेट्स से क्या बोलते हैं, एक दूसरे इंजीनियरिंग कंपनी का, ठीक है? सो ऐसा भी हो सकता है कि बोथ आर नॉट इवन रिलेटेड। सो तुम्हारा जब वो मार्केट ही चेंज हो जाएगा, यू विल बी डीलिंग विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मार्केट वाइज डेटा। उसका डेटा अलग था, इसका डेटा अलग है। तो मोर यू एक्सप्लोर दैट, तब तुमको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा अगर लेट्स से इफ आई एम डीलिंग विद अ टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री, तो उस कंपनी में एक सीईओ के लिए या फिर एक टॉप मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है, which are the KPIs that are important for them. Those kind of KPIs will not be important for a certain other industry type, right? ये तुम तभी अपने अंदर इनबिल्ट चीज ला सकते हो जब तुम डेटा सेट, वेरियस डेटा सेट स्टडी करोगे फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आज बोलो तुम ऑनलाइन भी जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, यू कैन सी सेवरल थिंग। आज एक एचआर वाला डैशबोर्ड का केपीआई एंड एक सेल्स वाला डैशबोर्ड का केपीआई सेम होता है? नो। नो, राइट? रिक्वायरमेंट्स अलग होता है, चीजें ही अलग है पूरा। सो यही चीज है, जब यहाँ पे तुम सीख रहे हो कि चीजें कैसे करते हैं, बट वो अगर तुम खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे, देन यू विल नॉट लर्न। देखो कोई भी चीज लेके, आज बोला ना एग्जाम्पल कि आज तुम किसी को देखोगे कितना अच्छा गिटार बजा लेता है, वो देखने में लगेगा तुमको यार कितना अच्छा गिटार बजाता है, बट वो बंदा या बंदी उस चीज के ऊपर कितना टाइम दिया होगा हर रोज, तब जाके वैसा मतलब वो गिटार स्ट्रम कर पा रहा है, राइट? So for you people also, if you constantly, मैं क्या बोला, हर रोज 1-1.5 घंटा भी बैठोगे, मोर देन इनफ। सारा दिन ऑफिस करके आने के बाद उतना एनर्जी नहीं रहता, सबका ही नहीं रहता, आई अंडरस्टैंड। बट इवन आफ्टर दैट ऑल्सो यू पीपल सिट फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, कि थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सकता है अगर करोगे तो यू विल एक्सेल, नथिंग एल्स। But you feel now we are gaining this knowledge, right? Where we were. हाँ, होगा होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है। लास्ट वो एग्जाम लेने के बाद से तुम लोग थोड़ा सीरियस हुए, उसके पहले तुम पढ़ नहीं रहे थे तुम लोग कोई भी, आई नो इट वेरी वेल। तो इट वाज लाइक हाँ ठीक है, क्लास चल रहा है, हो गया, आएगा वीडियो देख लूंगा, हो गया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल गोइंग ऑन, बट राइट नाउ जो भी हो रहा है, अगर पॉजिटिव एक अप्रोच आया है, कीप दैट गोइंग, ठीक है? तो बहुत जल्दी सीख जाओगे चीजें, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दी, वो लास्ट क्लास होगा कुछ समझाने का,
ठीक है, एंड आई विल गिव अ टोटल रिकैप। एक तो मैं खत्म करूंगा ब्लेंडिंग एंड देन द फंक्शंस वन, वो कंप्लीट करके आई विल गिव यू अ टोटल रिकैप ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे। ठीक है? Okay. So next class will be our last class. You're नो saying. नो 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 नो, Oh. दैट विल बी लास्ट क्लास ऑफ टीचिंग यू वेरियस स्टफ। नया और कुछ अभी सिखाने का नहीं है। Okay, okay. देन एक क्लास ऐसा होगा जब आई विल टीच यू अ कंप्लीट डैशबोर्ड कैसे करते हैं, एक डेटा सेट लेके, नॉट दिस सेल्स डेटा सेट, एक डिफरेंट डेटा सेट लेके, एक अच्छा वाला हम लोग क्लास में ही बैठ के सब मिलके एक डैशबोर्ड बनाएंगे। देन आई विल गिव यू अ होमवर्क, एक दूसरा डेटा सेट देके, एंड आई विल गिव यू क्वेश्चन कि वो डेटा सेट से तुमको डैशबोर्ड बना के, वही तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, एक डैशबोर्ड बना के प्रेजेंट करना है। ठीक है? Okay. एंड Okay. दैट वो जो एग्जाम होगा उसमें आई विल इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक पैरामीटर से लेके, फिल्टरिंग से लेके, सॉर्टिंग से लेके। सॉर्टिंग तो इन द ऑन द वे, मतलब ग्राफ में ही हो जाता है, वो तो आई विल अंडरस्टैंड कि क्या किया। सो आई विल ऐड मैप से लेके, आई विल ऐड एवरीथिंग हियर। ठीक है? ताकि सारा टीच मतलब जो भी चीजें हैं उस पे टच हो जाए। ठीक है? Okay. আমাদের লাস্ট ক্লাস কবে বাইরম? আজকে স্যার আমার জিজ্ঞেস করেছিল, আমি বলেছি আরো 3টে ক্লাস লাগতে পারে আজকেরটা নিয়ে। সো অ্যানাদার 2 ক্লাसेस, नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट दैट। उसके बाद एक दिन एक क्लास वी विल टेक फॉर यू नो the complete डैशबोर्ड प्रिपरेशन, एंड देन उसके बाद कर लेंगे। लेट मी सी इफ एक हफ्ते में एक सैटरडे संडे हो सकता है क्लास, तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है? Okay. इफ यू पीपल आर अवेलेबल ऑफ कोर्स देन ओनली। So okay, done for today. Okay, Yeah. Yes. তুমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিও পায়েল। আচ্ছা আমিই তো করছি, সরি। হ্যাঁ, ভুলে গেছি। হ্যাঁ আমি আমি এখন প্রেজেন্টটা বন্ধ করে দিই। ঠিক আছে আমরা কেটে দিই, কেটে দিলে তো হ্যাঁ, স্টপ।